नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में जिला भाजपा कार्यालय उद्घाटित, समारोह में मंत्री खुबा और चौहान रहे उपस्थित। गुलबर्गा विश्वविद्यालय योगासन की टीमों का चयन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कैबिनेट विस्तार। कर्नाटक में 21 चीनी मिलों पर गन्ने के वजन को लेकर शिकायत के बाद छापा मारा गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी बीआरएस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केसीआर से मिले। तवांग में हथियारों के सामने टिक न सके 300 चीनी सैनिक, धुंध दबाकर भागे। शाह की मौजूदगी में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर अहम फैसला, बोले सड़क पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा हल। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर में भाजपा जिला कार्यालय उद्घाटित। शहर के बाहरी क्षेत्र नौबाद में भालकी रोड पर स्थित नवनिर्माण भाजपा कार्यालय का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, राज्य पशुपालन मंत्री प्रबोध चौहान, विधायक शरणु सलगार, राज्य निगम व समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बिलदार, रौफुद्दीन कचेरीवाला, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, जिला भाजपा उपाध्यक्ष शिवानंद मटालकर सहित अन्य भाजपा के नेता आदि उपस्थित रहे। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। विचारधारेयन्न भारतಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ, ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನಸಂಘವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು, ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಈ ತರ ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. उस कार्यालय से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता में चैतन्य निर्माण हो, उस कार्यालय से हमारे पार्टी की ताकत बढ़े, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में हमारा देश का, हमारे भारत माता का डंका बज रहा है। विकासशील प्रधानमंत्री, सभी को न्याय देने वाले प्रधानमंत्री, उनका संकल्प विकास के साथ में, अभिवृद्धि के साथ में हमारी पार्टी बढ़ना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता बढ़ना चाहिए, हमारे लोकनेता मुख्यमंत्री जी का संकल्प आज ಇನ್ನೋರು ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರು ಹಿರಿಯರಾದಂತ ವಿಜಯ ಮಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು
ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇಂಥದ್ರೊಳಗ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 2 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2,000ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ 20-30 ಲಕ್ಷ ತನಕ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಹಣ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಂದು ಮತ್ತು ನಂದು ಕೂಡ ಪಾಲು ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2,000 ಕೊಟ್ಟರು, 1,000 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ गुलबर्गा विश्वविद्यालय के 6 सदस्यीय पुरुष और महिला योग टीमों का चयन बुधवार को औराद कस्बे के सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेज में किया गया। पुरुष और महिला योगियों को योग में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर टीमों के लिए चुना गया। चयन प्रक्रिया में कलबुर्गी, रायचूर, बीदर, शाहपुर, जेवरगी, औराद, हुमनाबाद, आलन, मदन हिपरिगा, मनाली सरकारी प्रथम श्रेणी कॉलेज और सहायता प्राप्त प्रथम श्रेणी के कॉलेजों से 30 पुरुष और महिला योग छात्रों ने भाग लिया। टीमों की चयन प्रक्रिया के लिए कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन गुलबर्गा विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के योग प्रशिक्षक डॉक्टर योग प्रशिक्षक ने किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा, मैंने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रस्ताव दिया है, इसकी आवश्यकता बताई है और इस पर जल्द से जल्द चर्चा करने के लिए समय मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विचार विमर्श के तुरंत बाद बोमे ने कहा कि वह 6 रिक्तियों को भरने के लिए कैबिनेट विस्तार के पक्ष में हैं और यह 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आवश्यक है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले होगा, उन्होंने कहा कि शाह संबंधित अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के बाद उन्हें समय देंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य में 21 चीनी मिलों पर छापा मारा। शिकायतों के बाद कि कारखाने कथित रूप से किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए गन्ने के वजन को कम करके गन्ना उत्पादकों को धोखा दे रहे थे। राज्य सरकार ने पहली बार चीनी मिलों पर इस तरह के बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। चीनी खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के विभागों के अधिकारियों और पुलिस ने संयुक्त रूप से 6 जिलों में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। वरिष्ठ अधिकारियों ने बेंगलुरु से ऑपरेशन का समन्वय किया। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के वसंत विहार में भारत राष्ट्र समिति BRA के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ अपने संबंध बनाए रखे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ अनुष्ठान में भाग लिया। सूत्रों के अनुसार कुमारस्वामी की BRS में गहरी दिलचस्पी इस बात का संकेत है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की राजनीति की देखभाल के लिए बेटे निखिल कुमारस्वामी को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में कूदने का विकल्प खुला रख रहे हैं। सूत्र ने कहा, यह सब कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। तवांग में चीनी सैनिकों की ऐसी पिटाई हुई है जिसकी चोट बीजिंग तक महसूस हो रही है। पूरी दुनिया ये तो जान गई है कि चीनी सैनिकों की डंडे से जबरदस्त पिटाई हुई है, लेकिन वो डंडा कहां से आया जिसकी चोट ड्रैगन नहीं सह पाया। भारतीय सैनिकों ने वज्र नाम के नुकीले डंडे से चीनियों को पीटा। खास बात यह है कि इस डंडे से सिर्फ चोट नहीं लगती, करंट का झटका भी देती है। भारतीय सैनिक वज्र और त्रिशूल नाम के नॉन लीथल वेपन से लैस थे, जिन्हें चीन को सबक सिखाने के लिए ही तैयार किए गए हैं। मेड इन इंडिया के तहत इन हथियारों को खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो करंट के तेज झटके के साथ मुक्के का पंच भी जड़ते हैं। स्टील से तैयार ये नुकीले वज्र करंट से लैस है, जो प्रहार के साथ साथ तेज झटके देते हैं और दुश्मन देखते ही भागने को मजबूर हो जाते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में अमित शाह के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद पर शाह ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक दोनों राज्य कोई दावा नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मसला संविधान के हिसाब से ही सुलझेगा। इसके अलावा उन्होंने यह अपील करते हुए कहा, गृह मंत्री के रूप में मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में विपक्षी दलों से राज्यों के सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। उन्होंने आगे कहा, मुद्दों को केवल संवैधानिक तरीके से सुलझाया जा सकता है, सड़क पर नहीं। केंद्र ने राज्यों के सीमा मुद्दों को हल करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंत्रियों को शामिल करते हुए 6 सदस्यीय दल गठित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुधवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए उनसे अपने पीछे पप्पू को ढूंढने के लिए कहा। यह टिप्पणी तब आई जब अनुदान मांगों पर चर्चा के अपने जवाब के दौरान सीतारमण ने महुआ की मंगलवार की टिप्पणियों का खंडन किया। मंगलवार को अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए तेज तर्रार तृणमूल सांसद ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए चुटकी ली थी। अब पप्पू कौन है? सीतारमण ने अपनी ओर से बुधवार को बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा, मैक्रो इकोनॉमी, इकोनॉमिक फंडामेंटल आदि के बारे में बात करते हुए माननीय सदस्य महुआ मोइत्रा ने कहा कि पप्पू को कहां मिलना चाहिए। पप्पू कहां है? पप्पू कौन है? दरअसल अगर माननीय सदस्य अपने पीछे झांके तो उन्हें पश्चिम बंगाल में पप्पू मिलेगा। तेलंगाना के जहीराबाद में रहीबर फाउंडेशन द्वारा इस सर्दी के मौसम में गरीब लोगों में ब्लैंकेट वितरण किए गए। जहीराबाद के मलकापुर गांव में फाउंडेशन द्वारा लगभग 400 गरीब लोगों में ब्लैंकेट वितरित किए गए। सैयद साबिर, एमडी खलील अहमद, मोइनुद्दीन पटेल, एजाज पटेल, हफीज हाजी, मलकापुर गांव के सरपंच आदि उपस्थित रहे। फ्रांस और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का एक बार फिर समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और बहुपक्षीय सुधार के लिए नई दिशा विषय पर खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के राजदूत निकोलस डी रिवियरे ने कहा, फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। वह स्थायी एवं गैर स्थायी दोनों सदस्यों के बीच अफ्रीकी देशों की मजबूत उपस्थिति भी देखना चाहता है। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दीपिका की भगवा बिकनी से पहले खुली कमर पर मचा था बवाल। विरोध के बाद भी फिल्म ने की थी जबरदस्त कमाई। अब समाचार खेल जगत के। फीफा वर्ल्ड कप
वर्ल्ड कप में एक और मौत से हड़कंप। फाइनल से पहले लुसेल स्टेडियम में हुआ दर्दनाक हादसा। आखिर में समाचार बाजार की। शादियों के सीजन में सोना चांदी खरीदने का सुनहरा मौका। आज दोनों कीमती धातु के भाव में आई बड़ी गिरावट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में जिला भाजपा कार्यालय उद्घाटित। समारोह में मंत्री खुबा और चौहान रहे उपस्थित। गुलबर्गा विश्वविद्यालय योगासन की टीमों का चयन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कैबिनेट विस्तार। कर्नाटक में 21 चीनी मिलों पर गन्ने के वजन को लेकर शिकायत के बाद छापा मारा गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी बीआरएस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केसीआर से मिले। तवांग में इन हथियारों के सामने टिक न सके 300 चीनी सैनिक, दुम दबाकर भागे। शाह की मौजूदगी में कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर अहम फैसला। बोले सड़क पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा हल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।